students, we are doing the chapter health team in which today's topic is public health nurse supervisor. Okay, so the word supervision conveys different idea to different people. To many, it implies inspection, checking of workers' performance, and primarily to find faults and deficiencies. Okay, so the work of public health nurse supervisor is not just for supervision, it is also for the inspection of checking the performance of the workers who are working there, and also to give advices and inspect them. Okay, so if we are talking about modern concept, okay, so in modern public health nurses supervisors, उनका क्या काम होता है, ठीक है. तो सुपरविजन इज़ मच मोर देन mere inspection. Okay, so just I said before that supervision is not just inspection, but it implies technical guidance, advice, training, demonstration, individual counseling, encouragement, and besides checking. Okay, so it's not just about inspection, it also the work that they do is also about technical guidance. They also give advices who are in need of that advice. They also train people who needs training. They also demonstrate individual counseling and encouragement, and also checking. Okay, checking is about the performance, the workers, what they are working over there. So उनका काम क्या होता है, चेकिंग करना भी उनके काम में आता है. Okay, so these are the work which public health nurse supervisor do in their work sector. Okay, next is objectives. Okay, so what are the objectives of this role? So first is to stimulate the interest of the person being supervised. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल उनका इंटरेस्ट होना चाहिए सुपरविजन में. ओके, अगर क्योंकि नहीं है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, देन वी के नॉट, हम उनसे नहीं ऐसा डिमांड कर सकते हैं कि उनका सुपरविजन है वो 100% है उनके वर्क के लिए. ओके, सो उनका इंटरेस्ट का भी होना ज़रूरी है टू डू अ बेटर जॉब एंड हेल्प हिम और हर. ओके, सो उनके बेटर जॉब के लिए उनको हेल्प भी लेना होता है किसी से भी, टू डिलीवर द स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी फॉर मोर इफेक्टिव वर्क. ओके, सो उनको अपना अच्छा वर्क देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, दे हैव टू deliver the skills. Okay, so they have to take their teachings to understand what they are going to do in their workplace. Okay, so they have to understand कि काम actually वहाँ पे क्या क्या करना होता है और कैसे करना होता है. Then next is supervision demands leadership quality. Okay, so whenever the term comes supervision, that means someone is have to be there जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी इसमें हो. ओके, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, देन आप सुपरवाइज ही नहीं कर सकते हैं दूसरों को. तो सुपरवाइजर्स मे बी अ गुड टीचर. ओके, सो नेक्स्ट इज सुपरविजन इज बेस्ट डन बाय ऑब्जर्वेशन. ओके, सो द बेस्ट वे टू सुपरवाइज इज just by observing people. Okay, so just by observing them we can supervise people in a more conscious way. Then reviewing the records and report in type of indirect supervision. Okay, so जब भी आप supervision करो, then records and report has to be there. Okay, उनका जो record है, report है, वो होना ही चाहिए, just for the proof that you can show to their subordinates. Next is role of public health supervisor. Okay, so now what the role of that particular health team have. So एक note है in which एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर टोटल 30,000 पॉपुलेशन को कवर करना होता है. ओके, कवर करना होता है, दैट मीन्स उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या फिर कोई CHC सेंटर है वहाँ पे उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ टीचिंग देना, इम्यूनाइजेशन, सब कुछ जो होता है, सर्वेज इंक्लूडिंग सर्वे, इन सब में उनको टोटल 30,000 पॉपुलेशन कवर करना होता है इन प्लेन एरिया. एंड इन हिली एरिया और या ट्राइबल एरिया, वहाँ पे उनको 20,000 पॉपुलेशन को कवर करना होता है. ओके, और नेक्स्ट इज ही विल बी अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल कंट्रोल ऑफ MO इन चार्ज ऑफ PHC. ओके, सो जो भी PHC CHC भी उनका पर्टिकुलर ड्यूटी है, देन वहाँ के MO के अंडर वो डायरेक्टली वर्क करते हैं. Okay, next is role of public health nurse supervisor. Okay, so now here comes their actual role in their workplace. Okay, so first role is in control of communicable disease. Okay, so the primary role of public health nurse supervisor is to control the communicable disease, and how we are going to study now.
First is ensure that all necessary steps are being taken by control of communicable disease in a village. Okay, so जो भी necessary steps है लोगों को अवेयर करने से लेकर के उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ टीचिंग देना अबाउट दैट पर्टिकुलर डिजीज़, तो ये सब क्या है, एक प्राइमरी स्टेप है जिसको कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं. वी शुड रिपोर्ट एनी आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक इन मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज. ओके, सो जब भी कोई आउटब्रेक होगा कोई एपिडेमिक डिजीज़ का, देन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म आवर MO, ओके, विच इज़ मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज. Then assist the medical officer of primary health center in taking necessary actions in case of outbreak of epidemic in PHC area. Okay, so as whatever say medical officers, so we have to follow him and follow their orders. Okay, PHC पे जितने भी हमें necessary actions लेने होंगे ताकि हम उस outbreak को रोक सकें, तो वो हमें assist करना पड़ेगा MO को. Okay, next is maternal and child health. Okay, so this is the program in which the main role of supervisor is to observe the people working in that working for that particular program. Okay, so it supervises and guides the health assistant and health worker, and activity involves the health guides and trained guides in effective implementation of प्रोग्राम फॉर देयर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. ओके, सो इनका मेन काम क्या होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में कि उन लोगों की एक्टिविटी को उनको गाइड देना करना होता है, उनको हेल्थ टीचिंग देना होता है. ठीक है, हेल्थ टीचिंग नहीं बोलेंगे बट बोलेंगे हम कि उनको टीचिंग प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, रिलेटेड टू प्रोग्राम, देयर नीड्स, देयर बेनिफिशरीज, अबाउट एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट इज स्कूल हेल्थ. सो वेरेवर स्कूल हेल्थ school health program happens, the primary role of supervisors is to visit school in PHC area. Okay, तो जितने भी PHC एरिया होते हैं वहाँ के स्कूल को वो लोग विज़िट करते हैं एक छोटे छोटे इंटरवल पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरी 6 months. ओके, 6 months या फिर जैसे भी नीड होता है प्रोग्राम का तो उनको जा करके वहाँ पे चेकअप करना होता है. ठीक है, देन देयर विल बी अ फुल हेल्थ चेकअप, देयर हाइट, देयर वेट, देयर एनी कोई ऑप्टिक प्रॉब्लम है, कोई ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इन सब का चेक करना होता है उनको. प्लस उनको कब कौन सी इम्यूनाइजेशन मिली है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन वहाँ पे बराबर है कि नहीं, इन सब का पूरा उनको हेल्थ एजुकेशन देना होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज मेक्स अरेंजमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलो अप एंड दो स्टूडेंट्स फाउंड टू हैव डिफेक्ट. ठीक है, तो जब भी अगर किसी स्टूडेंट को डिफेक्ट मिलेगा देन उनका फॉलोअप कैसे कब होना है, उनका ट्रीटमेंट किस बेसिस पे चलना है, उसके अरेंजमेंट्स पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सुपरवाइजर्स की. ओके, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ओके, देन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उनका काम होता है लोगों को, हेल्थ असिस्टेंट्स को गाइड करना. ओके, उनको सुपरवाइज करना और गाइड करना सारे हेल्थ वर्कर्स को. प्लस जितने भी दाई होते हैं या फिर जो भी दूसरे हेल्थ वर्कर्स होते हैं उन सबको नॉलेज प्रोवाइड करना अबाउट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कैसे उनको सारी एक्टिविटीज़ करनी है. ओके, एंड ऑल्सो अबाउट एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन. ओके, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इज जस्ट 2 or more vaccines is added into the immunization program. Okay, तो उनके बारे में उसको नॉलेज प्रोवाइड करना होता है. नेक्स्ट इज अबाउट फैमिली प्लानिंग. So in family planning, supervises and guides the health assistant and health workers and actively involves the health guides, trained guides in effective implementation of family planning program. Okay, so family planning में उनको क्या करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, गाइड करना होता है हेल्थ असिस्टेंट को कि कैसे हेल्थ वर्कर एक्टिवली पार्ट लेकर के लोगों को गाइड करें. ओके, ट्रेन जो गाइड्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को कैसे समझाना है, उन सब कुछ का जो काम है वो सुपरवाइजर्स के ऊपर आएगा. ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन के बारे में भी उनको क्या करना था, सुपरवाइज करना होता है, असिस्टेंट्स को गाइड करना होता है, एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में लोगों को अवेयर करना होता है. और साथ ही साथ जो इम्यूनाइजेशन होगा, विटामिन ए का है, आयरन है, फॉलिक एसिड टैबलेट्स है, इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन उन सब नीडेड पर्सन को देना होता है जिनको इसकी ज़रूरत है. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन. So it helps to ensure that all the steps are being taken for the provision of safe drinking water and implementation of environmental sanitation in village. Okay, so in terms of environmental sanitation, their work is to provide safe drinking water to everyone. Okay,
जितने भी लोग विलेज में रह रहे हैं उन सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए. प्लस दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन द फुल environmental sanitation in the whole village. Okay, next is treatment of minor ailments. Okay, so minor ailments is just the basic of surgery. Okay, the जैसे कि किसी का कट हुआ है या फिर ब्रेन जो छोटा मोटा बोन्स है उसमें माइनर सी जो ड्रेसिंग है या फिर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है इसको माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ उसको. सो उसमें क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स में, वो गाइड करते हैं हेल्थ असिस्टेंट को, हेल्थ वर्कर्स को कि उनको माइनर एलिमेंट में कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. ठीक है, स्कूल टीचर्स हैं उनको कैसे गाइड करना है अगर उनके स्कूल में किसी बच्चे को छोटी मोटी इंजरीज होती है. ओके, एंड ऑल्सो उनको अगर ज़्यादा चोट लगी है या फिर अगर उनका जो एलिमेंट है वो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल है. ओके, तो उसमें क्या करना है, उनको रेफ़र करना है एमओ को या फिर पीएचसी को या फिर सीएचसी को, उनकी जो भी एरिया में उसको पास में पड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन. ओके, तो एक कम्युनिटी में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है. सो फर्स्ट इज टू पार्टिसिपेट इन विलेज हेल्थ कमेटी, विलेज पंचायत मीटिंग टू असेस द हेल्थ नीड्स ऑफ कम्युनिटी and also to discuss the health problems with community and to enlist their cooperation in program. Okay, so उनको कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना होता है, हेल्थ कम्युनिटी से लेकर के विलेज पंचायत तक. ओके, ताकि उनको बेसिक नीड्स पता चले उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की. ओके, एंड ऑल्सो उनको डिस्कस करना होता है अबाउट प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ ऑफ कम्युनिटी. Okay, so next is maintains a close liaison with the block development officers, his staff, with other developmental program workers such as under national adult education program, national program, and also safe water supply and environmental sanitation. Okay, so उनको क्या करना होता है, उनकी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स BDO जिसको बोलते हैं, वहाँ BDO के जितने भी स्टाफ्स आते हैं उसके साथ सारे वर्कर्स के साथ में उनको जितने भी प्रोग्राम्स आई होती हैं. ठीक है, प्रोग्राम में वो जो वर्कर्स होते हैं काम कर रहे होते हैं उन सबको जो भी लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली जो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है या फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ सेफ वाटर है, तो इन सब क्या है जो बेसिक चीज़ें उनको उसकी अवेयरनेस, उनको उसको जो हेल्थ एजुकेशन है वो देना होता है. और सो बेसिकली इन सब के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करना होता है. Next is training of health personnel and community level workers. Okay, so what are the basic work that personal worker do in community level of workers. ठीक है, so first is to educate the community about health guide scheme, takes necessary steps, train their health guides for PHC area. Okay, so उनको एवरी कम्युनिटी वर्कर्स है, हेल्थ गाइड है, उनको नेसेसरी स्टेप बताना होता है और कैसे ट्रेन करना है उनको. ओके, तो इन सब की जानकारी पूरी PHC एरिया में जितने भी वर्कर्स हैं उनको देना होता है. ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ हेल्थ गाइड, प्राइमरी स्कूल टीचर्स, ट्रेन टाइज इज असिस्टेड इन देयर बाय द हेल्थ असिस्टेंट एंड हेल्थ वर्कर्स इन PHC एरिया. ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि वो अपना एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करवाएंगे सारे हेल्थ गाइड्स में या फिर प्राइमरी टीचर्स में. ओके, सो उनको उन सबको असिस्ट करना होता है. ओके, सॉरी मतलब सुपरवाइज करना होता है उन सबको अबाउट द बेसिक एजुकेशन ऑफ व्हाट दे आर डूइंग इन कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ सुपरविजन. ओके, नाउ हाउ दे मैनेज all their supervisions for everyone. Okay, so first of all they assist MO PHC in conducting field investigation to delineate local health problems for effective delivery of health service. Okay, तो first of all they have to assist MO and also PHC में उनको field investigation करना होता है हर एक local health problem को लेकर के. ओके, एंड साथ ही साथ उनको इफ़ेक्टिवली सभी को हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी भी प्रोवाइड करना होता है. ओके, नेक्स्ट इज इंश्योर दैट सप्लाइज एंड इक्विपमेंट सच एज ड्रग, कॉन्ट्रासेप्टिव, वैक्सीन्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर,
health education materials etc are supplied to them in a sub center. Okay, so basically क्या काम है उनका नेक्स्ट कि जितने भी अगर सप्लाईज या फिर इक्विपमेंट की उनको ज़रूरत पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, वैक्सीन्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर, एजुकेशनल मटेरियल्स, इन सब की अगर कमी हो रही है तो दे हैव टू गिव एवरीवन, मतलब दे हैव टू प्रोवाइड ऑल दी सप्लाईज टू द पीपल. ओके, एंड ऑल्सो स्टॉक्स में रखना होता है उनको, तो उसकी भी पूरी सुपरविजन उनकी होती है. नेक्स्ट इज टू स्क्रूटनाइज द वर्क प्लान्स ऑफ द हेल्थ असिस्टेंट और हेल्थ वर्कर. ओके, सो स्क्रूटनाइज मतलब सभी को उनका वर्क है उसको रूटीन के हिसाब से, उनके स्केड्यूल के हिसाब से लोगों को बांटना है. ओके, सो ये भी उनका काम होता है. नेक्स्ट इज सुपरवाइजर्स द मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड ऑफ सब सेंट्रल लेवल. ओके, सो उनका काम सुपरविजन के साथ साथ होता है जितने भी रिकॉर्ड्स है सब सेंट्रल लेवल पे उन सबको मेंटेन करना. ओके, नेक्स्ट इज ओके, सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस टॉपिक. ओके, थैंक यू.